So, good morning, everyone. Namaste. सुप्रभात। आज सुबह की हम शुरुआत कोई भी मेडिटेटिव पोस्चर से करेंगे। So, adjust yourself into any meditative posture. कमर गर्दन सीधी रहेगी। Focus on your breathing. मन को शांत करके तीन ओंकार लेंगे। Inhale. 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 Hands in Namaste, Atmanjali Mudra. We'll take the morning prayer. Om Sangachadvam Samvadadvam Samvo Manansi Janata Deva Bhagam Yatha Purve Sanjanana Upasate Om Shanti, Shanti, Shanti. रियलिटी शब्द को अपने जहन में उतारने की कोशिश करेंगे। साथ में मिलकर हम सब अच्छे कार्य करेंगे और आज के हमारे इस टास्क को संपूर्ण करेंगे। देवों की भांति हम भी पूजनीय बन जाएंगे। Rub your palms. Warm up your eyes. Feel this slowly. Slide your hands down. Slowly slide your hands on your entire body. पहली दृष्टि हमेशा जमीन पे पड़े। ऐसे नजरें खोलते हैं, धीरे से सामने देखेंगे। Look to your left, right, left, right, left down, right down, left down, right down, slow down, up, down, up. सिर्फ एक पूरा सर्कल करना है फॉरवर्ड और एक रिवर्स। Breathe in. One forward circle and one reverse. Once again, namaste everyone, and let's stand up on our mats. Everyone ready? Let's see. Yes. चलिए खड़े हो जाएंगे on your mat. Beginning of your mat. थोड़ा सा ऊपर stretch कर लेंगे. Starting तालासन की पद्धति में थोड़ा सा stretch up on your toes. अच्छे से ऊपर खींचे 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 बॉडी को nicely and relax. शोल्डर को रोटेट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 रिवर्स 5 4 3 2 1 change hands 1 2 3 4 5 reverse 5 4 3 2 1 hand on your waist
a little bit of distance between your legs and twist on your side. अच्छे से कमर को अच्छे से twist कीजिए. Walk to your left, to your right, to your left. थोड़ा सा और हाथों को आगे ले जाके ज्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश कीजिए. To your right. Nice. आपको जब सो जाते हैं तो थोड़ी कमर स्टिफ हो जाती है. तो बिफोर वी बिगिन थोड़ा सा वार्म अप बहुत जरूरी है. आई रियली विश कि आप थोड़ा सा वार्म अप करके ज्वाइन हो. अगर आपके पास सुबह टाइम है थोड़ा सा साइडवेज. नाइस स्ट्रेच. धीरे से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. पीछे की ओर आगे. और पीछे की ओर. हमारी कमर की 5 पोजीशन की स्ट्रेचिंग हमने अच्छे से कर दी है. अगर आपके पास टाइम हो, आपके पास सामने कोई भी दीवार या कोई चेयर या ऐसा कुछ है तो आप ऐसे करके पैरों की स्ट्रेचिंग ले सकते हैं. So ready nicely. So now we will begin from the beginning of our mat. जो नमस्ते position. 3 लंबी गहरी सांस लेंगे. One. Breathe in, breathe out. 2. Breathe in, breathe out. 3. Everyone has to chant with me. जो मंत्रोच्चार करते हैं उस मंत्रोच्चार से ही हमें पूरी एनर्जी मिलती है. तभी हम हमारा संकल्प जो है वो पूरा कर पाएंगे. So let's start. Om Vikraय Namaha. Breathe in, stretch back. Breathe out. Forward bending. Right leg back. Look towards the sky. Left leg back into a plank. Position को अच्छे से enjoy करेंगे. Muscles को tight करेंगे. धीरे से घुटनों को नीचे रखेंगे. And breathe into भुजंगासन. अच्छे से भुजंगासन में stretch feel करते हुए. Your toes in, going back to downward facing dog. यहाँ पे 5 breaths hold करेंगे. Inhale, exhale 1. Inhale, exhale 2. पैरों पे ज्यादा वेट डालने की कोशिश करेंगे. जिनके हील्स नहीं टच होते हैं वो लोग हिल मूवमेंट कर सकते हैं. टिप्टो मूवमेंट एट द बैक. Inhale, exhale 5. Right leg comes forward between your hands. Left leg on, left knee on the floor. Left leg comes in between your hands. लेते हुए ऊपर हस्तुत्तानासन. Breathe in, breathe out 1. Breathe in, breathe out 2. Breathe in, breathe out 3. Om Suryaya Namaha. Breathe in, stretch back. Breathe out. Tadasana. Left leg goes back. Towards the sky. Right leg goes back into a plank. Knees chest to the floor. Slowly coming to Parvatasana, downward facing dog. Looking towards your stomach. Inhale, exhale 1. Inhale, exhale 2. Inhale, exhale 3. Inhale, exhale 4. Inhale, exhale 5. Left leg comes in between your hands. This right leg comes in between your hands. Take away upper Hastuttanasana. Namaskar. Breathe out. Om Bhagaya Namaha. Breathe in, stretch back. Breathe out, down. Breathe in, Asvasanchalan, right leg. Left leg goes back into a plank. Chin chest to the floor,
नमस्कार, सांस लेते हुए ऊपर भुजंगासन, धीरे से coming to Parvatasana, 5 breaths, hold on, 1, 2, 3, 4, 5. Right leg comes in between your hands towards the sky. Left leg comes in between your hands. लेते हुए ऊपर and namaskar. Breathe in, breathe out, 1. Breathe in, breathe out, 2. Breathe in, breathe out, 3. Om Namaha. Breathe in, Hasuttanasana. Breathe out, Hastapadasana. Breathe in, left leg, Aswasana. Right leg goes back into a plank. Knees change to the floor and thumb namaskar. सांस लेते हुए भुजंगासन. धीरे से Parvatasana. 5 breath. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5. Left leg comes in between your hands. Right knee on the floor. धीरे से right पैर भी आगे आएगा. सांस लेते हुए हस्तोत्तरासन and Namaskar Samastiti. Next, Sheetal will help us and take the next one. Yes, Sheetal, ready? Sheetal, please unmute yourself. We are not able to hear you. Hi, Neeta. Yes, carry on. Am I properly visible and audible? Yes, yes. Starting from Sthita Pratnasana. Om Adityaya Namaha. Inhale, hands up and arch back. Exhale, touch your toes. Inhale, right leg back. Exhale, left leg back. Plank. Inhale, knees chest into the floor. Bhujangasana. Exhale, Adho Mukha Svanasana. Inhale, exhale 1. Inhale, exhale 2. Inhale, exhale 3. Inhale, exhale 4. Inhale, exhale 5. Inhale, exhale. Right leg back to the center of your hand. Inhaling, left leg joining the right leg. Raising your hand up and arch back. And Sthita Pratnasana. Breathe in, breathe out 1. Breathe in, breathe out 2. Breathe in, breathe out 3. Now, Om Bhaskaraya Namaha. Inhale, hands up and arch back. Exhale, touch the toes. Inhale, left leg back. Sorry, right leg back. Look in front, Ashwa Sanchalan. Inhale, left leg back. Plank. Knees chest into the floor. Ashtanga Namaskar. Inhale, roll your soles back. Bhujangasana. Exhale, Adho Mukha Svanasana. Stay up for 5 seconds. Inhale, exhale 1. Inhale, exhale 2. Look towards your stomach. Inhale, exhale 3. Inhale, exhale 4. Inhale, exhale 5. Inhaling, left leg back. Look in front. Exhale, right leg back. Inhale, raise your arms up and arch back and Sthita Pratnasana. Breathe in, breathe out 1. Breathe in, breathe out 2. Breathe in, breathe out 3. Om Ravaye Namaha. Inhale, raise your hand and arch back. Exhale, touch the toes.
Inhale, right foot back. Inhale, left foot back, plank. Knees stretch into the floor, Ashtanga and Bhujanga. Inhale, raise yourself and Adho Mukha Swasan. Inhale, exhale, 1. Inhale, exhale, 2. Inhale, exhale, 3. Inhale, exhale, 4. Inhale, exhale, 5. Inhaling, right leg back. Exhaling, left leg back. Inhaling, raise your arms up. Exhale, Sthita Prajna. Breathe in, breathe out 1. Breathe in, breathe out 2. Breathe in, breathe out 3. Om Bhanave Namaha. Inhale, raise your arms up, arch back. Exhale, touch your toes. Inhale. Right leg back, looking front. Exhale, left leg back, plank. Now knees stretch into the floor. Ashtanga. Roll your feet back. Raise yourself to Bhujanga. Exhaling, tuck your toes in, downward facing dog. And here we go. Inhale, exhale, 1. Inhale, exhale, 2. Inhale, exhale, 3. Inhale, exhale, 4. Inhale, exhale, 5. Inhaling, raise your left in front. Exhaling, right leg front. Inhaling, hands up. Arch back and hands down, Sthita Prajna. Breathe in, breathe out 1. Breathe in, breathe out 2. Breathe in, breathe out 3. Over to Suchita. Okay, good morning. Just breathe in, breathe out. Om Pushne Namaha. Inhale, both hands up. Exhale, down. Inhale, right leg back. Exhale, left leg back. Plank, knees, chin, chest to the ground, stomach up. Roll down to Bhujangasana. Come up for downward dog. Inhale, exhale, 1. Inhale, exhale, 2. Inhale, exhale, 3. Inhale, exhale, 4. Inhale, exhale, 5. Right leg in front. Left leg in front. And go up to Hastottanasana. And Namaste. Inhale, exhale, 1. Inhale, exhale, 2. Inhale, exhale, 3. Om Maritai Namaha. Hands up for Hastottanasana. Bend down to Hastapadasana. Left leg back. Ashwasanchalanasana. Right leg back. This is plank. Knees, chest, chin to the ground. Ashtanga Namaskar. And roll down to Bhujangasana. Tuck your toes in for downward dog. Inhale, exhale, 1. Inhale, exhale, 2. Inhale, exhale, 3. Inhale, exhale, 4. Inhale, exhale, 5. Left leg in front. Right leg in front. Hastottanasana. And inhale, exhale, 1. Inhale, exhale, 2. Inhale, exhale, 3. And now, Om Namaha.
नमः। Hastottanasana, Hastapadasan, right leg behind, left leg behind for a plank. Now knees, chin, chest to the ground, stomach up. Now go to Bhujangasana. Tuck your toes in for downward dog. Inhale, exhale 1. Inhale, exhale 2. Inhale, exhale 3. Inhale, exhale 4. Inhale, exhale 5. Right leg in front, Sanchalanasana. Left leg in front, Hastapadasan. Hands up, or Hastottanasana. And Namaste. Once again, left leg, Hastottanasana, Hastapadasan. Left leg behind, Aswasanchalanasana. Right leg behind for a plank. Ashtanga Namaskar. Bhujangasana. Come up for downward dog. Inhale, exhale 1. Inhale, exhale 2. Inhale, exhale 3. Inhale, exhale 4. Inhale, exhale 5. Left leg in front. Right leg in front. Hastottanasana. And then Om Akashaya Namaha. Hastottanasana. Hastapadasan. Right leg back. Aswasanchalanasana. Left leg back for a plank. Knees, chin, chest to the ground. Bhujangasana. Downward dog. Inhale, exhale 1. Inhale, exhale 2. Inhale, exhale 3. Inhale, exhale 4. Inhale, exhale 5. Right leg in front. Left leg in front. Up. So, namaste. Now left leg. Hastottanasana. Hastapadasan. Left leg behind. Right leg behind for a plank. Ashtanga Namaskar. Bhujangasana. Downward dog. Inhale, exhale 1, 2, 3, 4, and 5. Left leg in front. Right leg in front. Hastottanasana. Inhale, exhale 1. Inhale, exhale 2. Inhale, exhale 3. Om. I think, yeah, Sucheta, we are done. We'll have a break over here. Okay. And just a 2 minutes break before we can start. Just 2 minutes. थोड़ा सा ज़्यादा कुछ और नहीं करना है. So the next will be taken up by Vanita ji. Vanita ji, now we will not be holding. बिल्कुल भी hold नहीं करना है. Without holding will go. So not in the beginning and not even for the Parvatasana, the downward facing dog maybe. Okay, continuous movements. Yes, everyone, I hope everything's going fine. किसी का कोई question है तो please raise your hand. I'm not going to unmute everyone क्योंकि फिर ना बहुत disturbance हो जाता है और मुझे setting करने में बहुत time लग जाता है. Sorry. फिर लास्ट में बाकी के सारे जो क्वेश्चंस है बोलेंगे. स्टेप्स के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड. आई थिंक वी आर ऑलरेडी क्लियर. इतने स्टेप्स हमारे एकदम परफेक्ट हो गए हैं. कल से हम थोड़े से वेरिएशंस भी ऐड करेंगे ताकि इतना एकदम बोरिंग ना हो जाए और हम थोड़ा सा कुछ अलग भी ट्राई कर सके. ओके,
सो यस, आई थिंक हमने 2 गुड पानी भी पी लिया है और हमने अच्छे से पसीना भी पोंछ लिया है. सो वी आर ऑलरेडी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट सेट. कम ऑन. Yes, over to you, Vanita ji. Can you please just speak a word so I can check your voice volume? Om Yeah. Raya Namaha. Hands on your stomach, sternum. Raise your hands up. Hasta Uttanasana. Hasta Padasana. Touch your feet. Right leg behind. Ashwa Sanchalanasana. Left leg behind. Downward dog posture. Ashtanga Namaskar. Roll into Bhujangasana. Come back to the Ardha Mukha Svanasana. Bend your left knee on the floor, right knee in front, Ashwa Sanchalasana. Left leg front, Hasta Padasana. Both hands up, Hasta Uttanasana. Sthita Pratnasana. Release both the hands. Once again, join your hands, Sthita Pratnasana. Om Suryaya Namaha. Raise your both hands up. Hasta Uttanasana. Touch your feet. Hasta Padasana. This time left leg behind. Hasta Ashwa Sanchalanasana. Right leg behind. Ardha Mukha Svanasana. Come to the Ashtanga Namaskar. Roll into Bhujanga. Go again in a downward dog posture. Bend your right knee on the floor, left on front, Ashwa Sanchalasana. Right foot front, Hasta Padasana. Both hands up and behind, Hasta Uttanasana. Both hands in front, sternum, Sthita Pratnasana. Release your hands. Once again, Hasta Sthita Pratnasana. Om Khagaya Namaha. Raise your both hands behind. Touch your feet. Right leg behind. Ashwa Sanchalanasana. Left leg behind. Ardha Mukha Svanasana. Ashtanga Namaskar. Roll into Bhujanga. Come downward dog posture. Left leg on the floor, right leg in the front. Ashwa Sanchalasana. Left leg in front, Hasta Padasana. Both hands up, Hasta Uttanasana. Sthita Pratnasana. And release your both hands. Om Khagaya Namaha. Raise your both hands up. Both hands down. Right leg behind. Left leg behind. Ashtanga Namaskar. Bhujangasana. Ardha Mukha Svanasana. Left leg on the floor, right leg in the front. Left leg in the front. Both hands up. Sthita Pratnasana. Release your hands. Again come back. Sthita Pratnasana. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Raise your both hands up. Both hands down, touching your toes. This time left leg behind. Now right leg behind. Ardha Mukha Svanasana. Ashtanga Namaskar. Roll into Bhujanga. Come back in Ardha Mukha Svanasana. Bend your right knee, left leg in front. Right leg in front. Raise your both hands behind. Come back in a Sthita Pratnasana. Over to you. Yes, thank you, Vanita ji. And let's continue with our Surya Namaskar. थोड़ा सा फास्ट लेंगे. Remember, अगर आपको लगता है कि आप फास्ट नहीं जा पाते हैं तो go at your own pace. That is perfectly okay.
और जंप भी नहीं कर सकते हैं तो यू कैन जस्ट डू द अश्व संचलन एंड कंटिन्यू. Om Adityaya Namaha. Breathe in, stretch back. Breathe out, touch the ground. अच्छे से पांव को नीचे रख के थोड़ा सा knees bend करके jump into a plank. Inches to the floor, सांस लेके भुजंगासन. Tuck your toes, Parvatasana. Breathe in, breathe out, and into Samasthiti. Breathe in. Om Bhaskaraya Namaha. Breathe in, stretch your hands back, touch your toes, jump back, knees inches to the floor, Sahasraya Bhujan. Come into Parvatasana, jump back in between your hands, Sahasraya Upar, Hastasana, Namaskar. Sorry about that. Breathe in, breathe out. Om Rave Namaha. Breathe in, stretch back, touch the ground, jump back, knees inches to the floor, सांस लेके भुजंग. Come back into Parvatasana, jump in front, सांस लेके Hastasana. Breathe in, breathe out. Om Mariche Namaha. Breathe in, Hastasana, Hastapadasana, jump back, roll round, into Bhujan. Back to Parvatasana, jump in front, breathe in, stretch back, Namaskar. 3 long deep breaths. And the last one, continue with holding. Breathe in, breathe out 1. Breathe in, breathe out 2. Breathe in, breathe out 3. Om Savitru Surya Narayana Namaha. Breathe in, stretch back and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Breathe out, touch the floor for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Breathe in into right leg back, Aswasthana. Om Khadai Namaha. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Into a plank. Om Hiranyagarbhaya Namaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Knees changes to the floor. Om Adityaya Namaha. Breathe in, coming to Bhujangasana. Om Bhaskaraya Namaha. Hold on. 2, 3, 4. Enjoy the stretch in your stomach. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Tap your toes and go to Adho Mukha Savasana. Om Rave Namaha. Hold on. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right leg comes forward. Om Rave Namaha. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Left leg comes forward. Om Mariche Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Breathe in, Hastasana, hold on.
Om Arkai Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Om Savitru Surya Narayana Namaha. And release. With this, we are done with our 21 and go to Savasana. Everyone, lie down on your mat, relaxing your body, enjoying the Savasana. You did a very good job and you deserve a beautiful Savasana. अच्छे से बॉडी को पूर्ण तरह से ढीला छोड़ दीजिएगा. आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट. पूरे बॉडी को रिलैक्स कर दीजिएगा. Relaxing your entire body. Make sure there is no stress in any part of your body. जितना जरूरी वार्म अप होता है उतना ही जरूरी कूल डाउन होता है. And after getting so nicely warmed out, sometimes we feel that we don't need a cool down. But believe me, your body needs a cool down. आपके सारे muscles tension में नहीं रहने चाहिए. So relax nicely with a very nice smile on your face, relaxing your toes, relaxing your heels, relaxing your calf muscles, your knees, relaxing your thighs, relaxing your stomach muscles, relaxing your chest muscles, relax your heart, listen to your heartbeats, listen to your heart, saying thanks to you for performing this wonderful, energetic 21 Surya Namaskars. Relaxing your hands, your fingers, your wrist, your palm, your elbows, your shoulders. Relaxing your neck muscles, your facial muscles, your ears, eyes, nose, cheeks, chin. चेहरे के सारे मसल्स को एकदम रिलैक्स कर देंगे. Relaxing your tongue inside your mouth. Relaxing your eyeballs inside your eyes. आंखों पे, forehead पे, कहीं पे भी कोई भी झुर्रियां ना बाकी रह जाए. गहरी सांस लेंगे. धीरे से interlock your hands and stretch it up. तो nice यस्तिकासन. अच्छे से हाथों को ऊपर की ओर, पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे. अच्छे से खींचना है, खींचना है, खींचना है. Nice. पैरों को ऊपर से मोड़ के hands की position, side
twist nicely to your left, to your right. धीरे से twist to your right, look to your left. Nice and easy. Hug your legs and roll from side to side. Massaging your back nicely. Turn to your right side. Lie down in Dridasana. Breathe in, breathe out. With the support of your left hand, come into second position. आंखें बंद रख के 3 भ्रामरिक ले लेंगे। आंख और कान को क्लोज कीजिए हाथ से और मुंह बंद रख के 3 बार ओंकार लेंगे। Breathe in. Namaste, and we'll take the Gayatri mantra. लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे। आंखें बंद रखते हुए धीरे से फॉरवर्ड बेंडिंग लेंगे। जहां तक आप जा सके वहीं तक, ज्यादा लोड नहीं करेंगे। गर्दन को, शोल्डर्स को छोड़ दीजिए। नाइसली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अपने आप को पूरा रिलीज कर दीजिए। भू माता के चरणों में, परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे से ऊपर आएंगे। लाइट एंड इजी रब योर पाम्स जेंटली। अच्छे से दोनों हाथों के बीच की ऊर्जा का अनुभव करेंगे। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे। धीरे से हाथों को चेहरे पे, बॉडी पे घुमा के पहली दृष्टि जमीन पे पड़े। ऐसे नजरें खोलेंगे। And thank you everyone for joining, and we have with us over here our Ayurvedic doctor, Dr. Suhail Dalal, जो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। So I invite you, Suhail जी। डॉक्टर साहब, आप हमें स्पेशल टिप देने के लिए आए हैं आज की हमारी स्पेशल हेल्थ टिप, ताकि हम सूर्य नमस्कार अच्छे से परफॉर्म कर सके। बट कहाँ गए? आई कांट फाइंड यू। सुहेल जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? Yeah. Hello. Hello. Yes, hello. Yeah, we can hear you. जी, how are you all? Good. બધાને મ્યુટ રાખેલા છે એટલે નહીં અવાજ નહીં આવશે. પહેલા તમારી ટીપ આપી દો, પછી we'll open up so that everyone can ask the questions. Okay, yeah. So, shall I start? Yes, sir, please. We are waiting for your health tip of the day. जी, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल सूरत गुजरात से, और निखिल बेन तो काफ़ी समय से मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं, और मुझे बहुत ही खुशी हुई आप सब लोग ये 21 डेज का सेशन ले रहे हैं सूर्य नमस्कार का। और योग जो है वो आयुर्वेद का एक अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सारी चीज़ें आयुर्वेद के ही अंग हैं। और जब आप योग कर रहे हैं तो सूर्य नमस्कार एक बहुत ही बढ़िया योग है, जिसमें आप देखने जाए तो जो पोजीशंस बनती है
ये सारी पोजीशंस में आप जो है वो अपनी बॉडी के हर एक मसल्स को यूज करके उसको रिलैक्स करते हैं। और सूर्य नमस्कार की आप प्रैक्टिस रेगुलर करते रहेंगे तो उससे आपकी शुरुआत से लेकर मतलब जहाँ से आप एब्स को स्ट्रेच करते हैं वहाँ से लेकर ऑल ओवर बॉडी में जो आपके ब्लड का जो फ्लो है वो मस्तिष्क से लेके आपके फीट तक पूरा फ्लो होता है, और जिससे आपकी बॉडी को काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं। स्पेशली हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है उसमें काफ़ी एनहांसमेंट मिलता है। और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताता हूँ, क्योंकि अभी की जो ये सीजन चल रही है ये शरद ऋतु चल रही है, और आयुर्वेद के हिसाब से शरद ऋतु जो है वो रोगों की माता होती है। शरदे रोगस्तु माता। तो शरद ऋतु में ज़्यादातर लोग जो है वो बीमार रहते हैं, और इसी सीजन में आप लोगों ने हेल्थ का इनिशिएटिव लिया है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन साथ साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान भी रखना है, जैसे कि अगर अर्ली मॉर्निंग में हम उठकर सूर्य नमस्कार ले रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार करते हुए अगर आपका मॉर्निंग में स्टमक क्लीन नहीं हुआ है तो आपको बर्प्स आएंगे या फिर आपको एसिड रिफ्लक्स होगा, क्योंकि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है और एसिडिटी ज़्यादा जनरेट होती है बॉडी में। तो आप सब लोग जो कर रहे हैं काफ़ी, आप लोगों में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन लोगों को ये तकलीफ शायद रहती होगी। तो कुछ एक दो चीज़ें आपकी जो एक्सरसाइज चल रही है, योग चल रहा है, उसके रिलेटेड मैं बताऊं कि अभी आप लोग रोज रात को सोते वक्त 1 चम्मच आंवला चूर्ण, आंवले का जो पाउडर आता है उसको 1 चम्मच 5 से 7.5 ग्राम तक, अगर जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है 7.5 ग्राम लीजिए, जिनको नॉर्मल पेट क्लीन रहता है वो लोग 1 चम्मच यानी 5 ग्राम आंवले का चूर्ण रात को 10 बजे 1 गिलास गर्म पानी के साथ पीकर सो जाइए। तो सुबह बॉडी में से जो शरद ऋतु के अकॉर्डिंगली जो एक्सेसिव पित्त जनरेट होता है, जो एसिड जनरेट होता है ये सीजन में, वो मॉर्निंग में आपको अच्छे से सुख विरेचन हो जाएगा और मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अर्ली मॉर्निंग में जब वर्कआउट करेंगे तो आपको ऊपर बर्प्स नहीं आएंगे, एसिड रिफ्लक्स ऊपर नहीं आएगा। दूसरा, जब आप सुबह उठते हैं तो 1 गिलास नॉर्मल वाटर का इंटेक करिए, बहुत ज्यादा पानी ना पिए सुबह में। 1 गिलास ज्यादा से ज्यादा 1.5 गिलास यानी 200 से 300 ml जितना पानी का आप इंटेक करें, घूट घूट करके बैठ के आराम से पानी पिए। उसके बाद आप मुनक्का जो आती है ब्लैक काली सूखी द्राक्ष जिसको हम मुनक्का कहते हैं, वो 3 से लेके 5 उसको आप सुबह एम्प्टी स्टमक चबा लें। उसके साथ साथ अगर आप उसके साथ साथ अगर आप खाना चाहें तो 5 से 7 बादाम खा सकते हैं और एक एप्पल खा सकते हैं। उसके 10 मिनट के बाद आप जो है आपका सूर्य नमस्कार का प्रोसेस स्टार्ट करें। ऐसा करने से आप लोगों को काफी एनर्जेटिक फील होगा, ना एसिडिक फील होगा, और बहुत ही अच्छे से आप अपने सूर्य नमस्कार कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। Yes, everyone is allowed to unmute. तो आपका भी सुहेल जी थोड़ा म्यूट हो गया है, प्लीज अनम्यूट। तो किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप सुहेल जी से पूछ सकते हैं। डॉक्टर सुहेल दलाल, ही इज अ वेरी रिनाउंड आयुर्वेदिक डॉक्टर, और आई वुड प्राइडली से दैट मे बी इनके बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस और बहुत सारी मेडिसिन फॉलो करती हूँ जिससे कि मैं हेल्दी रह सकती हूँ। और योग और आयुर्वेद जो है वो दोनों बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं। तो योग आयुर्वेद योग को करने की सलाह देता है और योग आयुर्वेद को फॉलो करने की रहता है। डेफिनेटली यस, आयुर्वेद का ही पार्ट है योग जो है वो। हाँ तो जी, या सो यस, एनीवन हैज एनी डाउट्स? कल आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, किसी को माइग्रेन और काफी क्वेश्चंस थे, तो प्लीज गो फॉरवर्ड। आपके जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं। वी हैव अ गुड डॉक्टर विथ अस। यस, you guys are able to unmute yourself. Try it. हेलो Yes, yes. हाँ जी, हेलो या ओके, ये गौमूत्र पीने से अच्छा होता है? मैं हर सुबह वैसे पीती हूँ। हाँ, डेफिनेटली पीना चाहिए, लेकिन अभी का जो ये जो सीजन है ना, इसमें अगर आपको एसिडिक रिफ्लक्स रहते हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि शरद ऋतु है और ऑलरेडी इसमें पित्त का प्रकोप होता है। तो गौमूत्र जो है उसकी जो जो तासीर है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है, इट इंक्रीजेस द पित्ता। सो वंस इट इज विंटर ना, देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग इट। ओके, विंटर में स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, फॉर 4 months you can take in winter. ओके। Yes, Vanita ji. In the case of यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसके लिए क्या जी। करना? वो जनरली आपके डॉक्टर्स जो है वो आपको सलाह तो देते ही होंगे कि आप लोगों को हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करना है। आई थिंक आप ये जानते होंगे। जो लेकिन मैं सीरियल्स
ना लेती ही नहीं हूँ, मतलब ना दूध लेती हूँ। आई एम लैक्टो पूरा लैक्टोज इंटॉलरेंस है आपको, ठीक है। नहीं वो नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी सारा बंद किया है मैंने Okay. दूध के प्रोडक्ट्स। और दालें भी अच्छा। मैं बहुत ही थोड़ी पतली, इतना जितना अपने चावल डूबे उतना खाती हूँ। और प्रोटीन अच्छा, तो तो मैं देखिए, लेती ही हूँ फिर भी। हाई यूरिक एसिड जो है उसको गाउट कहा जाता है। और गाउट का जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारी लाइफस्टाइल के रिलेटेड होता है। तो जैसे पुराने समय में ये जो रोग है, ये आयुर्वेद में इस रोग का, इसको आयुर्वेद में वात रक्त कहा जाता है। वायु और रक्त का सम्मिश्रण होता है। जब रक्त कोई जगह पे इकट्ठा हो जाता है और वहां पे वायु की वजह से पेन होता है, उसको हम वात रक्त कहते हैं। ये पुराने जमानों में राजा राजा लोगों को होता था ये रोग, ऐसा कहा गया है। क्योंकि जिन लोगों की लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंटरी होती है, बिठाड़ू जीवन होता है, जो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, उसके सामने उनका खाना पीना बहुत हैवी प्रोटीनियस होता है, उन लोगों को ही ये रोग होता है। तो आपको क्या करना है, आपकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सेडेंटरी कम करना है, लाइफस्टाइल को थोड़ा एक्टिव करना है। दूसरा, खाने पीने में आप जो है वो हाई प्रोटीन डाइट पे अगर लेते हैं, आपके खाने में प्रोटीन भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप क्या करें, फाइबर जैसे कि एप्पल है, ऐसे फ्रूट्स हैं, जैसे कि आप एप्पल के साथ पोमोग्रेनेट है, ये सारे फ्रूट्स आप ज्यादा लीजिए। खाने के साथ थोड़ा सा सैलेड्स भी लीजिए ताकि आपको फाइबर्स भी मिले। और वाटर इंटेक आपका कम होता है तभी गाउट बढ़ता है। यूरिक एसिड बढ़ने का कारण लो वाटर इंटेक होता है, क्योंकि यूरिक एसिड जो है हमारे मूत्र विसर्जन यानी कि यूरिनेशन के द्वारा बॉडी से बाहर निकलता है, हमारे यूरिन के द्वारा। जब प्रॉपरली यूरिक एसिड बॉडी से यूरिन के थ्रू ड्रेन नहीं होता है, तभी आपका जो है वो गाउट बढ़ता है। तो आप पानी का इंटेक ज्यादा रखें, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी दिन में पिए। और पानी जो पिए वो 1 लीटर पानी को जला के पिए। जैसे 5 लीटर पानी लीजिए या 4 लीटर पानी लीजिए रात के टाइम पे, उसको 1 लीटर जला दीजिए। फिर बाकी के जो 3 या 4 लीटर बचे उसको ठंडा करके पूरे दिन में पीजिए। ऐसा करने से आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा। दूसरा, मैंने आंवले का चूर्ण आपको बताया, आंवले का पाउडर जो है उसको सुबह शाम 1-1 चम्मच लेने से भी आपका यूरिक एसिड काफी कम होगा। थैंक यू। वैसे आई एम मोस्ट एक्टिव, आई एम द मोस्ट एक्टिव, इससे ज्यादा मैं एक्टिव हो नहीं सकती हूँ। फिर भी मेरे फिर भी आपका यूरिनेशन को आप चेक करो, देखो आपको वो जो है वो। आपने अच्छा बताया मुझे। जी जी। और जो पानी की बात बताई, which हाँ, I was उसको आप not aware. ध्यान रख के पीजिए। कम से कम अगर एक्टिव ज्यादा है आप, तो 4 लीटर पानी का इंटेक होना चाहिए और 7 टाइम्स आपको यूरिनेशन होना ही चाहिए। Okay. Thank you for this. Thank you. एक्सक्यूज मी सर, या मैं रश्मि देशमुख बोल रही हूँ। तो पीरियड्स के दौरान क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार पीरियड्स आदि? के द्वारा आयुर्वेद में एक्सरसाइज करने को बिल्कुल वर्जित बताया गया। इट इज टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग पीरियड्स टाइम टू वर्कआउट। आयुर्वेदा हैज सजेस्टेड कि भाई बिल्कुल भी ना करें आप। उससे क्या होता है कि वात की वृद्धि होती है। एक तो आपका एक्सर्शन होता है बॉडी में से, तो आपको काफी लो फील होता है। उसके साथ साथ अगर आप वर्कआउट करते हैं तो इट लीड्स टू योनि व्यापद, यानी कि वजाइना से रिलेटेड जो 20 रोग बताए हैं आयुर्वेद में, उसमें से कोई भी एक रोग होने का चांस बढ़ जाता है। सो कंप्लीटली वो 7 दिनों को आप अवॉइड करें। थैंक यू। ठीक है, आई होप यू गॉट माय आंसर। हेलो 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 हेलो। विशाल जी आपका हाँ, okay, yeah, sorry. हाँ, I जी। was actually muted. Okay, so किसी और का कोई question है? Yes, सुचित, या मनसुख लाल वीरा जी, आपका अनम्यूट कीजिए, आपका अनम्यूट करके बोलिए। मुझे ये पूछना है कि अपन जो ये कान खींचते हैं, तो वो कान खींचना, कान मरोड़ना, वो कान का प्रॉब्लम हो तो कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, कान का प्रॉब्लम मतलब अगर आपको कान में स्वेलिंग है या कान को खींचने से या दबाने से अगर आपको पेन होता है, तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको और कान बिल्कुल स्वस्थ है, तो वो वाइटल पार्ट्स जिसको मर्म कहा जाता है, तो मर्म को खींचने से, मर्म को दबाने से जो एक प्रकार की जो ब्रेन में एक्टिविटी होती है, जो एक्सरसाइज होती है, उससे काफी बेनिफिट होता है। लेकिन अगर कान में प्रॉब्लम है तो उसको नहीं खींचना चाहिए। कान का पर्दा थोड़ा टेढ़ा हो गया हो तो नहीं करने का? ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। और वैसे कान खींचना, कान मरोड़ना वो अच्छा है कि कितना है? हाँ, वो एक्चुअली मर्म चिकित्सा के अंतर्गत आता है। आयुर्वेद का एक पार्ट है वाइटल पार्ट्स, जिसको कान जो है उसकी ये जो बूट है,
ये वाइटल पार्ट्स कहा जाता है, इसको विदुर मर्म कहा जाता है। इसको दबाने से काफी जो बॉडी के सेंसरी पार्ट्स हैं वो एक्टिव होते हैं। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, इसीलिए पुराने जमाने में कान पकड़ाए जाते थे और कान को मरोड़ा जाता था। थैंक यू जी, ओके निकल मैम, इज इट ओके? यस, कुंडी जी हमारे साथ है, मॉर्निंग मैडम, हमारे गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग कुंडी जी। कुंडी जी आप हमारे आयुर्वेदिक के बारे में कुछ अगर पूछना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। क्या मॉर्निंग? हाँ, माय नेम इज जितेंद्र सिंह कुंदी। जी। सो यहाँ पे ये जो योगा के हो रहा है, मेरा थोड़ा शेड्यूल ऐसा है कि मैं इसमें अटेंड नहीं कर सकता। सो बट ये बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ अच्छा है। अगर मैडम इसको अगर सुबह 7 की बजाय अगर 6 बजे हो जाए तो फिर मैं कर सकता हूँ। वो तो नीतल जी से आपको डिस्कस करना पड़ेगा। हाँ जी। तो दूसरा ये है हाँ, कि नेक्स्ट शेड्यूल हम 6 बजे का रखेंगे, ये वाला ऑलरेडी हमारा हो गया है। हाँ जी। ब्लड प्रेशर जो है, तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कभी ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, तो उसका क्या रीजन है? देखिए, सबसे पहले ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे शरीर में वात और पित्त से रिलेटेड है। वात और पित्त का जो इम्बैलेंस बॉडी में होता है वो दो चीज़ों से होता है। एक हमारे खाने पीने से होता है, हमारी फूड हैबिट में सॉल्ट का इंटेक या खट्टी चीज़ों का या स्पाइसी चीज़ों का इंटेक ज़्यादा होने की वजह से होता है। दूसरा, स्ट्रेस लेवल इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है। अगर आपका फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। अगर आप उसको कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है उसके साथ साथ आयुर्वेद की एक दवाई मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। वो दवाई आप इसके साथ अगर कंज्यूम करेंगे तो उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंटिन्यूअसली कंट्रोल में रहेगा। एक टेबलेट का नाम आप लिख सकते हैं, आयुर्वेद की बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है जिसका नाम है ब्राह्मी वटी। ये ब्राह्मी वटी ये हिमालय कंपनी की अभी अवेलेबल है मार्केट में। आप ब्राह्मी वटी का सेवन सुबह शाम एक टेबलेट के स्वरूप में 1 या 2 महीने तक करिए तो उसमें आपको काफी रिलीफ हो जाएगा। ओके, थैंक यू जी, ठीक है? थैंक यू, या थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। आई गेस और किसी का कोई क्वेश्चन मैं बाकी आपसे है? एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। Yes, I have a question. रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जैसे अभी आज डॉक्टर साहब आए हैं, तो ऐसे जब कोई और स्पेशलिस्ट आएंगे तो वो आप पहले मेरे को एक दिन बता देना क्या प्रोग्राम है, ताकि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में भी सारे जहाँ इंटरनेशनल में भी अनाउंस कर दूं। हाँ जी, हाँ जी। इसका फायदा सभी उठा सके। हाँ जी सर। सुहेल जी वैसे भी बहुत हमारे साथ क्लोज है, तो अगर आपको चाहिए तो उनका हम एक अलग से भी सेशन रख सकते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। और मैं आई थिंक आपने पहले मिस किया, मैं खुद पर्सनली इनकी मेडिसिन करती हूँ और मैं बहुत सबको रिकमेंड भी करती हूँ, क्योंकि आई रियली बिलीव के आयुर्वेदा जो है वो हमारे बॉडी को अंदर से अच्छे से क्लीन कर सकता है और हमें हेल्दी रखने में बहुत हेल्पफुल रहता है। सो यस, थैंक यू वेरी मच कुंडी जी, और थैंक यू सुहेल जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लीजिए। आई थिंक समवन वाज आस्किंग। Yes, Dr. Yes. For Yes, Sital ji. Yeah. Yes. For diabetes, is there a medicine in Ayurveda if allopathy is not suiting the patient? सुहेल जी आपका म्यूटेड है। I think it is unmute now. Can you hear me? Yes. Yeah. So diabetic problem, it is totally related to your lifestyle. Sedentary lifestyle and food habits are the main reason behind it. So उसके लिए आयुर्वेदा हैज सॉल्यूशंस। 5 साल के अंदर का अगर डायबिटिक पेशेंट है जिनको विदिन 5 इयर्स अगर हुए हैं तो वो आप आयुर्वेद के चिकित्सक के पास जाके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, वो कम्प्लीटली क्योर हो जाते हैं। हमारे क्लिनिक पे पिछले 8 साल में काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो लोग डायबिटिक थे, जो ओबेसिटी की वजह से ओबेसिटी इंड्यूस्ड डायबिटिक थे, उन लोगों को भी हमने क्योर किया हुआ है। और कुछ लोग मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से डायबिटिक थे, उनको भी क्योर किया हुआ है। जो लोग स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटिक थे, उनको भी क्योर किया हुआ है। सो डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉब्लम की वजह से उनको जो है वो पेनक्रियाज की एक्टिविटी कम हुई है। अगर एक होम रेमेडी आप चाहते हैं कि आप मैं सजेस्ट करूं आपको कि जिससे आपकी जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहे, तो आप लिख लीजिए। आप जो आपके किचन में हल्दी रहती है,
वो हल्दी आप 100 ग्राम हल्दी लीजिए और एक उसके साथ 100 ग्राम आंवला चूर्ण को मिक्स कर दीजिए। आंवले का पाउडर और हल्दी दोनों को मिक्स करके सुबह दोपहर शाम एक चम्मच खाना खाने के आधा घंटे के बाद आप लीजिए। तो उससे आपकी जो शुगर लेवल है अगर ज्यादा रहती है तो वो कंट्रोल में रहेगी। Thank you so much. One more question related to metabolic only for thyroid. Now youngsters are also getting diabetes, thyroid, teenagers like 15 years. So in that case, thyroid is also in such way. Curable. Yeah, it is curable. So ये सारे जो डिसीज है ना, ये जैसे यूरिक एसिड हो गया, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज या गाउट, ये सारे या डिसलिपिडेमिया जिसको हम हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और पीसीओडी आजकल ज्यादा होता है गर्ल्स में, तो ये सारे जो डिसीज है ये कम्प्लीटली रिलेटेड है आपकी लाइफस्टाइल एंड फूड हैबिट्स से। तो उसको आप जो है वो करेक्ट करके आयुर्वेदा मेडिसिन आप आयुर्वेद कंसल्टेंट से कंसल्ट करके 3 से 6 महीना उसको फॉलो करिए तो ये क्योर हो जाएगा। थायराइड प्रॉब्लम जो है वो अगर 15-20 साल पुराना है तो वो कंट्रोलेबल है, बाकी अगर 5 to 10 ईयर्स के अंदर का है तो वो क्योर हो सकता है। जितनी ओल्ड एज हो जाएगी उतने बाद क्योर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर यंगस्टर्स को है तो जल्द से जल्द क्योर हो सकते हैं और आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो जल्दी से एक्टिव हो सकती है। एक टैबलेट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आपकी फैमिली में किसी को थायराइड है तो कांचनार गुगुल ये टैबलेट फॉर्म में आती है, जिसको 2 सुबह शाम लेने से इसमें काफी हद तक इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। स्पेलिंग बोलेंगे प्लीज? स्पेलिंग KANCHANARGUGUL, कांचनार गुगुल। 2 twice a day, या 1 महीने तक लेके फिर देखे। हाँ, 2 tablets twice a day आफ्टर फूड च्यू करके लेनी है आपको। ओके, खाना खाने के बाद 2 टैबलेट लेना, एक दोनों महीना टाइम जी, पोस्ट लंच एंड पोस्ट डिनर। ओके, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, मुझे ना साइनस का बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या करना है? हाँ. अच्छा, आप लोगों ने जितने मुझे जो क्वेश्चन पूछे हैं ना, मेरा आपको यूट्यूब चैनल में सजेस्ट कर देता हूँ। माय यूट्यूब चैनल इज डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा, DRDALLS आयुर्वेदा। उसमें ये सारे प्रॉब्लम्स रिलेटेड मैंने अपने खुद के वीडियोस रखे हुए हैं और पेशेंट के इंटरव्यूज भी रखे हुए हैं कि जिन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम था, यूरिक एसिड था या हाई ब्लड प्रेशर था, डायबिटीज था, उनको थायराइड था किसी को, तो उनको हमने दवाई से क्योर किया हुआ है। पिछले काफी सालों से वो लोग बगैर मेडिकेशन के जी रहे हैं। तो एक बार आप चैनल को विजिट करके वहां पे भी वीडियो देख लीजिएगा तो यू विल कम टू नो कि ये क्योर होता है कि नहीं। अच्छा, दूसरा आपका जो साइनस का प्रॉब्लम है वो भी इजीली ठीक हो जाता है, क्योंकि इट इज टोटली रिलेटेड टू एयर पोल्यूटेंट्स एंड डस्ट। So you write down one medicine name. It is called Sitopaladi Churna, SITOPALADI, Sitopaladi Churna। ये पाउडर के फॉर्म में आएगा, आप कोई भी अच्छी फार्मेसी से लीजिए और 1 टीस्पून ट्वाइस अ डे आफ्टर फूड उसको शहद के साथ लेना है। ऐसे मिक्स करके पेस्ट करके उसको आप चाटना है उसको शहद के साथ। 1 से 2 महीना करिए तो काफी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। मतलब पूरा चॉकअप हो जाता है और ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम होता है। तो आप उसमें नस्य भी कर सकते हैं षडबिंदु तेल का। पहले आप थोड़ा सा 5 मिनट स्टीम लीजिए, देन आफ्टर षडबिंदु तेल करके एक ऑयल आता है जिसको आप नेजल इनहेलेशन करते हैं, अंदर 6 ड्रॉप्स उसके डाल के अंदर खींचना होता है सुपाइन पोजीशन में सो के। सर को थोड़ा सा नीचे की ओर लाई डाउन करके उसका आप नस्य करिए षडबिंदु का। तो ये जो पूरे जो हमारे साइनस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये पूरा क्लियर होता जाएगा। ओके, कौन सा बोला वो ऑयल? षडबिंदु तेल। ओके, थैंक यू। ओके, हेलो अंजित जी, आई वांट टू नो योर एड्रेस। लाइक मेरी डॉटर को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शी इज 24 और उसका ब्लड प्रेशर ऑल ऑफ अ सडन गिर जाता है। लाइक लो बीपी का प्रॉब्लम है उनको। हाँ वो जी, भी लो ठीक हो बीपी सकता का। है। यू राइट डाउन माय एड्रेस, सर संजीवनी एक काम आयुर्वेदा कीजिए, हॉस्पिटल। सर आपका चैट बॉक्स में ही टाइप कर देंगे तो सबको अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ वहाँ पर। ओके, आपका फोन नंबर भी टाइप कर दीजिएगा ताकि एवरीवन कैन कांटेक्ट यू पर्सनली। एक काम करता हूँ नीतल जी, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ तो आप ही उसको डाल दीजिएगा प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ द होल थिंग। या okay, fine. थैंक यू Thank you everyone. I think डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारा टाइम दिया है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुहेल दलाल, आपके एक्सेलेंट गाइडेंस के लिए और मेरे सारे सूर्य नमस्कार पार्टिसिपेंट्स के मोटिवेशन के लिए। along with that I would also like to thank जतिंदर सिंह कुंडी जी, जिन्होंने हमें सुबह सवेरे जूम के साथ हमें सपोर्ट करते हैं। वो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिर भी आपको
आपका सपोर्ट सबके लिए बहुत मायने रखता है। और along with that we also would like to thank शीतल जी, वनीता जी, सुचेता जी, जिन्होंने मुझे सूर्य नमस्कार के लिए सपोर्ट किया। और किसी को भी ऐसे अगर आप आई नो आप लोगों ने मुझे पहले मैसेज किया था, बट मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे तो शायद आपका मैसेज मिस हो गया था, तो प्लीज मुझे वापस से मैसेज कीजिएगा। आपको भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना है सूर्य नमस्कार के लिए। आई एम ओपन टू ऑल द सजेशंस आल्सो, और आप ऐसे ही थोड़े सेशंस कंडक्ट भी कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव विथ अस ओवर हियर आवर वीडीजी पूर्वी शाह जी। हेलो पूर्वी जी। एंड मेरी सबसे अच्छी सपोर्टर मुक्ति जी। मुक्ति, आर यू विथ अस? आई कांट सी यू डियर। मुक्ति जी सुबह सवेरे सबसे पहले मेरे साथ ज्वाइन हो जाते हैं और मेरे सारे प्रोग्राम्स में सपोर्ट करते रहते हैं। डायटिशियन मुक्ति जी, आई थिंक शी हैज लेफ्ट। नहीं, मैं हूँ। हाँ, तो बोलेगी तो पता चलेगा ना। यस, म्यूट कर दिया था तो टाइम हो ओके गया। ओके। सही है, वैसे thank you. हमारा सूर्य नमस्कार जो है वो 8 बजे से पहले खत्म हो जाता है, तो जिनको अगर जल्दी है, आपका दूसरा सेशन है, आप लीव कर सकते हैं। विल बी हैविंग सम गेस्ट स्पीकर्स लाइक दिस एवरी डे, जो हमें कुछ अच्छी टिप्स देने के लिए आएंगे। अभी इट्स अप टू यू, आपको वेट करना है, आप वेट कर सकते हैं। अगर आपका दूसरा सेशन है, आपको लीव करना है, लीव कर सकते हैं। बट हाँ, सूर्य नमस्कार हमारे 21 सूर्य नमस्कार कंप्लीट करने से पहले नहीं लीव कर सकते हैं। ओके, सो यस, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू टुमारो मॉर्निंग एट 7:15। मेरा स्टार्ट उससे 7 बजे से पहले हमारा तो सेशन स्टार्ट हुई, जूम सेशन ओपन ही हो जाता है। तो किसी को अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सो यस, आई सी यू नेहा। हाय नेहा, हाउ आर यू? Nice to see you doing the Surya Namaskar, huh? Good. Thank you everyone. Bye-bye. Have a nice and beautiful day. Bye, good day. Thank you. Goodbye. Thanks, Rohini. Thank you. Have a nice and bye. Thank you everyone. Bye-bye. Thanks, Sucheta. Thanks.